A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Sumita Panigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. But before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. I'm teaching you science, and we are reading Chapter 1 Chemical Reactions and Equations. And this is the fourth part. We've already completed three parts, and what we have studied the difference between chemical and physical reactions. Okay, then examples. All right, I taught you how to write a chemical equation. Then we learned how to balance it. There are two methods of balancing. First is traditional method, and second is algebraic method. All right, algebraic method is the most preferred one, and in the last class we studied combination reaction. All right, so today we'll be studying a bit more. Okay, let's get started. Today we'll be reading what are endothermic reaction, okay, what are exothermic reaction, and what are decomposition reaction. All right, okay. So the first reaction is endothermic reaction. तो क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडो से क्या पता चलता है, कोई बता सकते हैं मेरे को? व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडो, just remember one thing, whenever you're not able to guess any word's meaning, just break it down, you'll be able to guess it. Okay, so this is endothermic reaction. endo का मतलब कुछ absorb हो रहा है, so here heat is absorbed. Okay, endothermic reaction are those reactions in which heat is absorbed. ओके तो यहाँ पे हीट जो होता है वो अब्जॉर्ब हो रहा है. ऑल राइट, ऑल राइट. सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल. क्या है इसका अब पढ़ेंगे हम आगे, बट उससे पहले जो होता है एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना. ओके, यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब हो रहा है, और एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है? एक्सो इवॉल्व हो रहा है. सो एंडो में एब्जॉर्ब हो रहा है और एक्सो में इवॉल्व हो रहा है. फाइन. सो ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे जब रिएक्टेंट्स कंबाइन करता है तो वहाँ पे हीट जो होता है अब्जॉर्ब होता है, तभी जाके एक प्रोडक्ट बनता है. ऑलराइट, सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज अब्जॉर्ब. ऑलराइट, इसके क्या एग्जांपल्स हैं? सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका बर्फ जब मेल्ट होता है. ठीक है, सो व्हेनेवर आइस मेल्ट्स टू वाटर, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. ना वो कैसे होता है? एंडोथर्मिक हुआ कैसे? जब फ्रीजर में आइस था, ठीक है, तो फ्रीजर में था, ऑलराइट, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या थे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था. या पढ़ चुके हो नाइन्थ में, राइट? व्हेन वी टेक इट आउट इन द रूम टेम्परेचर वी कीप इट, तो इसमें क्या होता है कि उनकी एनर्जी जो इनसाइड जो एनर्जी थी सॉलिड की वो जीरो हो जाती है, and it comes in contact with that of the atmospheric air, और वहाँ से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ती है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, एंड इट बिकम्स लिक्विड. ओके, so when we took out the freezer ice to that of and kept it in the room temperature, the ice absorbed heat from the atmospheric temperature and it became water. Alright, and this is a type of endothermic reaction. Now take one more example. One more example is your digestion. हम जब भी खाना खाते हैं, okay, I'm intaking right now. If I'm eating rice or bread, I'll be chewing it. मैं क्या करूँगी? चबाऊँगी, और इसके बाद वही खाना जाएगा मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. ठीक है, वो कहाँ जाएगा? मेरे स्टमक में जाएगा. स्टमक में हमारे ऑलरेडी एंजाइम्स एसिड्स हैं, तो ब्रेक डाउन करेगा टू दैट ऑफ द सिंपलर कंपाउंड्स. हम जब कोई भी कंपाउंड इनटेक करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है, and then when we intake it, we eat it, inside the stomach it is converted into that of simpler compounds, right? वही simpler substances क्या होते हैं? ग्लूकोज. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं. वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, ओके, इन द शेल्स ऑफ द बॉडी, एंड इट गिव्स अस एनर्जी. ठीक है, समझ गए? तो हम खाना खाते
जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है स्टमक में, वो सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होती है। वही सिंपलेस्ट सब्सटेंस यानी कि ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? हमारी बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, ओके, इन द ब्लड वेसल्स। तो वहीं से वो ऑक्सीजन लेता है, ग्लूकोज कंबाइन करता है विद दैट ऑफ ऑक्सीजन, एंड उसके बाद वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। ओके, तो यही कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन होके ऑक्सीजन बनके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? एंडोथर्मिक दोनों एग्जाम्पल्स में एनर्जी जो होता है, हीट जो होता है, वो अब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, आइस के केस में भी हो रहा है और आपके डाइजेशन के केस में भी हीट जो है वो अब्जॉर्ब ही हो रहा है। ऑलराइट, ओके, नाउ विल बी रीडिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? एक्सो में जैसे कि मैंने बताया, रूट वर्ड एक्सो मीन्स हीट रिलीज हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ थोड़ी सी हीट भी इवॉल्व होती है। ओके, so reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. तो दो reactants combine करते हैं in certain conditions and then they form product. उस product के साथ heat is evolved. Hence, this type of reaction is called as exothermic reaction. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, फजल फिल आप जला रहे हो, सपोज कोल जला रहे हो, एलपीजी गैस हम जो घर पे जलाते हैं, या फिर फायरवुड ड्यूरिंग विंटर्स। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर मैं लकड़ी जला रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? आई एम गिविंग ऑक्सीजन बाय बर्निंग इट। वंस आई एम प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन बाय बर्निंग इट, यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट इवॉल्व हो रहा है कि नहीं? तो मेरे को गर्मी लग रहा है, मैं लकड़ी जला रही हूँ, मैं जैसे माचिस मारती हूँ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है? गर्माहट मिल रही है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जैसे कि आप बहुत सारे छिलका होता है हमारा वेजिटेबल मैटर्स, जिसको हम खाद बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस छिलके को ये पिट में डाल देते हैं, एंड लॉन्ग रन में क्या होता है, बहुत टाइम के बाद वही जो छिलका होता है कॉम्पोस्ट बन गया होता है। ठीक है ना, और वही कॉम्पोस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वहाँ से हीट इवॉल्व हुआ होता है ड्यूरिंग दैट ऑफ, इसी से क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है। वही रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट सड़ जाता है जो, तो उसी को हम कंपोस्ट के तरीके पे यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स को देने के लिए। तो वो भी फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट जो होता है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज देयर हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है, CH4 that is gaseous give rise to two that is combines with oxygen give rise to carbon dioxide and water। तो जो भी हमारे LPG गैस है उसमें मीथेन कंपाउंड्स रहते हैं, when it combines with that of oxygen यानी हम जब से बर्न करते हैं तो क्या निकलता है? हीट। ऑलराइट, सो दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने क्या पढ़ा? एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि हीट अब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग रिएक्टेंट्स व्हेन कंबाइन, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। ऑलराइट, और यहाँ पे क्या होता है? एग्जाम्पल्स इसके डाइजेशन है, फॉर्मेशन ऑफ आइस टू वाटर है, और एक्सोथर्मिक में कंपोस्ट फॉर्मेशन या फिर हमारा बर्निंग ऑफ फिजल फ्यूल्स है। ठीक है, सीधा कोड वर्ड याद रखो, एंडो मीन्स अब्जॉर्ब एंड एक्सो मीन्स इवॉल्व। ठीक है, दैट्स इट, कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो, ओके, इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, नाउ we'll be moving towards the next part, that is decomposition reaction. Now, what do you mean by decomposition reaction? Again, we'll be breaking the word decomposition. D मतलब तोड़ना। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? कंबाइन कर रहे थे हम दो प्रोडक्ट्स को, वी वर कंबाइनिंग इन ऑर्डर टू गिव राइज टू प्रोडक्ट। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही रिएक्टेंट को हम ब्रेक कर रहे हैं इन सर्टेन कंडीशंस टू गिव राइज टू प्रोडक्ट, टू और मोर प्रोडक्ट्स। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट दी, क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ दैट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑलराइट, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे? दो रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे थे, प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट को तोड़ के प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, so decomposition reaction and combination reaction are vice versa with each other, they are opposites of each other। ठीक है, तो combine में combination में combine कर रहे हैं और decomposition में हम एक ही प्रोडक्ट को तोड़ रहे हैं।
दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओके, a decomposition reaction is a reaction in which a single component breaks down into multiple products. Certain changes in energy in the environment have to be made, like heat, light, or electricity breaking bonds of the compound. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, इधर हीट प्रोड्यूस हो रहा है या फिर हीट यूज़ हो रहा है, फिर लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जस्ट वाइस वर्सा इच अदर, ठीक है, वो ऑपोजिट है एक दूसरे के, कॉम्बाइन में कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, और डिकम्पोजिशन में टूट रहा है। नाउ इसका क्या एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख रहे हो क्विक लाइन, ठीक है, क्विक लाइन जो आपको दिख रहा है वो फॉर्मेशन हो रही है कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि ब्लू कलर का हो, सॉरी वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया कि हमने लिया, वो सॉलिड पाउडरी फॉर्म में होता है, उसको हमने हीट दिया, बर्न किया उसको, ठीक है, बंसन बर्नर में वी टुक कैल्शियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब, देन वी हीटेड इट विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर। हमें क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा, अगेन इट विल बी वाइट कलर। सो यहाँ पे क्या है, दैट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो सिंगल कंपाउंड था, अब वही हीट देने पे कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, यानी कि एक मेरा जो रिएक्टेंट था हीट देने पे वो दो प्रोडक्ट्स बन गए। दैट्स व्हाई there is breaking of a single compound of the reactant in order to give rise to two products. Hence, breaking of heating of the calcium carbonate is a type of decomposition reaction in which we are getting two products, that is calcium oxide and carbon dioxide. All right, समझ गए, टूटा कैल्शियम कार्बन, ठीक है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बनिक एसिड। अब देखो कार्बनिक एसिड में क्या है, एक कार्बन है, तीन ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसको जब हमने हीट किया, ठीक है, तो क्या बना, H2O अलग हो गया और CO2 अलग हो गया, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यही कार्बनिक एसिड जिसमें CO3, ठीक है, एक कार्बन इसका स्ट्रक्चर है, एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन मिलके थे दोस्त होके, उसके बाद जब मैंने गर्म हीट कर दिया तो क्या होगा, H2O अलग हो गया और CO2 अलग हो गया, ठीक है, वाटर अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन कर रहा है दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनने में। ऑलराइट, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट दे आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कभी नहीं बोला कॉम्बिनेशन में कंबाइन होता है, डिकम्पोजिशन में टूटता है, ठीक है, समझ गए। कोई भी डाउट होगा तो मेरे को बोलना, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन इवन डिटेल इफ देयर इज एनी डाउट, ओके। ऑलराइट, और कुछ देखते हैं एग्जांपल्स। यहाँ पे है फेरस सल्फेट, FeSO4, 2FeSO4, यही फेरस सल्फेट को जब मैं हीट दे रही हूँ, गर्म कर रही हूँ, तो क्या मिल रहा है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, SO2, सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर, क्या मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो मेरे को तीन कंपाउंड्स मिल गए यहाँ पे। हम जो पहले थे वहाँ पे क्या था, मेरा जो कैल्शियम कार्बोनेट में बर्न कर रही थी तो मेरे को CO2 मिला और कैल्शियम ऑक्साइड मिला, तो आई वाज गेटिंग टू प्रोडक्ट्स, बट दिस इज एन एग्जांपल in which I am getting three products. तो और ऐसे रिएक्शन, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे हीट का इस्तेमाल होता है, हीटिंग करके हम डिकम्पोज करते हैं, उस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके। So here ferrous sulfate when exposed to heat give rise to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. So here क्या हुआ, heat supply हो रहा है, hence this type of reaction are known as thermal decomposition reaction. Similarly one more, limestone, CaCO3, calcium carbonate, CaO and CO2 बन रहा है। So यहाँ पे भी मैं heat supply कर रही हूँ। So it's a type of thermal decomposition reaction. Third one is lead nitrate. लीड नाइट्रेट को मैं भी वो सेम चीज़ कर रही हूँ, मैं बर्न कर रही हूँ, मैं हीट सप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे को मिल रहा है लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड क्या बन रहा है, एंड बन रहा है ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वही सेम चीज़ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, ठीक है, कैरिड आउट कर रहे हैं हम लोग हीटिंग के थ्रू, तो हमें मिल रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, ओके। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हमें समझ में आ गया, एक
एक ही रिएक्टेंट टूट रहा है, अगर उसको हीट देके तोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। वी लर्न लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब जो है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब जो ब्रेकिंग ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट जो होता है वो एक टाइप का नहीं, तीन टाइप का है। क्या क्या? जो फर्स्ट हमने पढ़ा दैट वाज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द सेकंड पॉइंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, we'll be discussing two more, that is electrolytic decomposition reaction, that is known as electrolysis, and the third one is photodecomposition reaction, also known as photolysis। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन हमने पढ़ लिया, जिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट में हम लोग हीट देके उसको डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वी इवन लर्न लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। नाउ हम आगे जो दो है इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस वो देखेंगे। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? हैव यू एवर कम अक्रॉस दिस टर्म? ऑलराइट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर इन विच H2O, वाटर में क्या होता है? पानी, H2O क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो जब भी हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जरूरत होती है, हम किससे निकालते हैं? वाटर से निकालते हैं। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डन इन ऑर्डर टू गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिक दे रहे हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक देख के हम डिकम्पोज कर रहे हैं। पहले में थर्मल में क्या कर रहे थे? हीट दे रहे थे। इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं। तो हम जब भी वाटर में, कोई भी एक्वास सोल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तो हमारे एलिमेंट्स अलग हो जाएंगे। और ये जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, दिस इज एक्चुअली डन इन ऑर्डर टू गेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डिफरेंटली। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जा रहा है पानी में, जिससे कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले। ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो आप कोई भी प्लास्टिक मग ले लो, या आप घर पे नहीं कर सकते हो मेरे हिसाब से, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बट हाँ ऑफ कोर्स स्कूल में आपको कराएंगे इसको। आप एक प्लास्टिक मग ले लो, ठीक है, उससे अच्छा ये वाला एग्जाम्पल देखो। ठीक है, यहाँ पे जैसे है आप देख रहे हो, क्या है यहाँ पे? एक बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ? पॉजिटिव टर्मिनल में आपका एनोड होता है और नेगेटिव टर्मिनल में आपके कैथोड होता है। और ये एनोड में एनायन होता है, जो कि क्या होता है? तो एनोड होगा और कैथोड होगा, दो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अब एनोड हो गया जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड हो गया जो आपका नेगेटिव चार्ज है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? बैटरी लेना, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज कॉल्ड एज एनोड एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एज कैथोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। देन दे टुक वाटर, इलेक्ट्रोड्स को डुबाया जाता है, ठीक है, करंट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? एक पॉजिटिव टर्मिनल है मेरे पर्टिकुलर, मेरा जो भी मैंने बैटरी लिया है, और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें आके नेगेटिव आयंस लगेंगे, और नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं? एनायन। ओके, और जो मेरा नेगेटिव टर्मिनल है यानी कैथोड, उसमें मेरे कौन से आयंस लगेंगे? पॉजिटिव आयंस लगेंगे, विच इज नोन एज, क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? दे आर नोन एज कैटायन। ओके, सो वही है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड और नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड। तो उस पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के टुवर्ड्स नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल्स हैं एनाइन, वो अट्रैक्ट होते हैं, और नेगेटिव जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है यानी कि कैटायन, उसमें पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कैटायन अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और उसी से हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो अलग होता है, एक वोल्ट दिया है इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा एनायन के एनोड और कैथोड की तरफ एनायन और कैटायन दैट इज नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे। इसी से अच्छा, वाटर में H2 का कौन सा चार्ज होता है? ऑक्सीजन का कौन सा चार्ज होता है? तो बता सकते हैं? H2 इज पॉजिटिव एंड O2 माइनस नेगेटिव होता है। तो अब बताओ कि
जो H2+ है हमारा वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, वो जाएगा एनोड की तरफ या वो जाएगा कैथोड की तरफ। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वहाँ नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव कौन जाएगा, ऑक्सीजन। और कौन हमारा जो कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव चार्ज है। कौन नेगेटिव चार्ज है, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा यानी H2+। तो इसी वे में H2+ और O2- सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? ओके, वेरी गुड। सो दैट वाज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने दो रिएक्शंस पढ़ा, एक पढ़ा हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, और एक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो थर्ड रिएक्शन है। फोटो से क्या पता चलता है, लाइट। जैसे कि हमने फर्स्ट डिकम्पोजिशन में जब पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि 3 फैक्टर्स से हो सकता है, एक हीट हो सकता है, एक लाइट हो सकता है और एक इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने हीट और इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे लाइट। तो लाइट का कैसे होगा, फोटोलिटिक रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये फोटो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो रिएक्शन है, वो जब हम एक ज़माने में ब्लैक एंड व्हाइट पोइट्री में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते थे, उस टाइम पे फोटोलिटिक रिएक्शंस उसी में होता था, यानी कि लाइट से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी किया जाता था। वो कैसे होता था, ठीक है, वो ऐसे होता है, देखो 2 AgBr, ठीक है, Ag क्या है, सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड टूटता था लाइट देने पे, Ag और Br यानी सिल्वर और ब्रोमाइड अलग हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट दिया जा रहा है, हम सनलाइट दे रहे हैं जिससे कि सिल्वर ब्रोमाइड मेरा टूट रहा है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। The decomposition reactions require energy either in the form of light, heat or electricity to break the reactants. तो इसी हिसाब से डिकम्पोजिशन हमने 3 बनाया, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटो। ठीक है, फोटोलिटिक। तो और एक होता है, और ये जो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो दीज आर, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट अब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, हीट अब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ पे भी। तो दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर सकते हो कि आप सनलाइट में खिड़की खोल सकते हो, सनलाइट आ रहा है, सपोज आपके रूम के इनसाइड, एक चाइना डिश लेना, चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड डालना, उस सिल्वर क्लोराइड का कलर सिल्वर होगा, बट व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू दैट ऑफ क्या, लाइट, इट विल बी कन्वर्टेड टू वाइट कलर। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो सिल्वर कलर था, अब वो क्या हो गया है, वाइट हो गया है, क्योंकि सिल्वर और क्लोराइड अलग हो चुके हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ light. Okay, so this is an example. ठीक है, all right, so what we actually studied today, we will be discussing in brief. So we actually studied endothermic क्या है, endothermic जहाँ पे heat absorb हो रहा है, exothermic क्या है, जहाँ पे heat evolve हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स एंडो में क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, ओके, मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट, कॉम्पोस्ट बनाना, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पोस्ट। एंड एक्सोथर्मिक में क्या पढ़ा हमने, एक्सोथर्मिक में बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स ले लो, या फिर नॉट डिकम्पोजिशन, हैव यू स्टडी डिकम्पोजिशन, नहीं, डाइजेशन पढ़ा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ा एक मेल्टिंग ऑफ आइस और एक तो जो है आपका क्या पढ़ा, डाइजेशन। और एक्सोथर्मिक में हमने क्या पढ़ा, एक्सोथर्मिक में हमने पढ़ा कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके हीट इवॉल्व कर सकते हो, या कंपोस्ट को, कंपोस्ट जब फॉर्मेशन होता है उसमें भी हीट इवॉल्व होता है। उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट और द रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन विच कॉम्बिनेशन में 2 कंपाउंड्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में एक ही रिएक्टेंट ब्रोकन डाउन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हीट और सनलाइट, लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव राइज टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होते हैं, उसका एग्जाम्पल्स हमने देखा। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन जहाँ पे हीट यूज़ हुआ डिकम्पोज करने के लिए,
फोटोलिसिस जहाँ पे सनलाइट यूज़ हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुआ। वी डिस्कस्ड अबाउट द टर्म्स ऑफ एनोड एंड कैथोड। एक बैटरी में पॉजिटिव एनोड होता है, नेगेटिव कैथोड होता है। एनोड की तरफ एन आयन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव साइड, नेगेटिव टर्मिनल जो कि कैथोड है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैटायन अट्रैक्ट होंगे। इसी से हमारा H2 प्लस और O2 माइनस हम सेपरेट कर सकते हैं इन वाटर। ओके, और फोटो डिकम्पोज में हमने देखा कि हमारा जो AgCl था, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू दैट ऑफ डिकम्पोज होकर वो बन गया सिल्वर और क्लोराइड। ठीक है, सो दैट इज द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑलराइट, तो हमने अब तक दो रिएक्शंस पढ़ लिया, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा जिसमें कंबाइन हुआ, और एक डिकम्पोजिशन जस्ट द ऑपोजिट, वो फिर थ्री टाइप्स का हमने पढ़ा, एक फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस एंड थर्मल। All right, hope you understood the session, and thank you for watching today's session. If you have any doubt, please let me know. I'll be clarifying your doubt. All right, and just go after watching this session and just open your textbook and read it once. It will be more amazing for you to understand, and then make your own notes and study. All right, कोई भी doubt हो तो let me know. Until then, I'll be seeing you in the next session. Have a good day and bye.